जय हिंद एवरीवन। स्टैंडर्ड 10th मैथ चैप्टर 1 क्लास 4th। आज हम एक बार फिर चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये हमारी 4th क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, for every integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b. A equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b. In our second class, we discussed application of Euclid's division lemma. Application of Euclid's division lemma. And the application of Euclid's division lemma is that for finding the HCF of two or more numbers. In third class, we discussed about the application of Euclid's division lemma is continued in word problems, है ना, in word problems. And in our fourth class, which is going to held today, we will discuss the fundamental theorem of arithmetic. Before this, the topic is going to discuss is today the topic is going to discuss is the fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic. चलिए, आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स में से एक दो और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, the question number 5 will
show that one and only one the question is show that one and only one of n plus 1 or n plus 2 is divisible by 3. Is divisible by 3. ध्यान से समझिएगा इसको, एकदम सिमिलर क्वेश्चन एक मैं बना रहा हूं, समझा दे रहा हूं आपको, और दूसरा सिमिलर क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे। एकदम सिमिलर क्वेश्चन होगा। आइए देखिए, अब ये क्लियर है कि जैसे इसके प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने नंबर को, जो अननोन नंबर था उसको a सपोज किया था। यहां देखिए क्वेश्चन n के टर्म में है, इसलिए इस बार हम उस नंबर को a न मान के n मानते हैं। देखिए, लेट the number be a। अब इस बार a को किससे डिवाइड करें, है ना? Because if we want to apply the Euclid's division lemma, there must be some divisor। देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है ना 3 से डिविजिबल चेक करना है, देन वी विल डिवाइड दिस नंबर a, सॉरी n, है ना, यहां n सपोज करना है। वी विल डिवाइड दिस नंबर n बाय 3, and if this n is divided by 3, the quotient comes q and the remainder is r, then by applying Euclid's division lemma, we can express n as 3q plus 1, where this, sorry, 3q plus r, yes, 3q plus r, where this r greater than or equals to 0 but less than 3, है ना? चलिए, then it can be expressed as n equals to 3q plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b, है ना? अब आप बताइए कि r पहले तो equals to 0, it means r 0, or it should be greater than 0, it means 1, 2, and this r is less than b, it means अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं then 3 will be equals to b, equal नहीं होना चाहिए, है ना? Therefore we have 3 options, r equals to 0 or 1 or 2, है ना?
n equals to 3q plus, look, if r equals to 0, it means n becomes 3q. If r becomes 1, then either 0 or 1, then it will be second form. Or if r equals to 2, it is the third form. Hence, if n is expressed as 3q plus r, 3 different forms of number are obtained, है ना? अब चलिए इसको एक एक करके हमें ये शो करना है कि अगर ये 3 फॉर्मेट हम नंबर का लें जो क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है, दैट इफ n और n प्लस 1 और n प्लस 2, अगर ये 3 फॉर्मेट हम लें तो इस 3 में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम नंबर की ये 3 फॉर्मेट लें n, n प्लस 1 और n प्लस 2, तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, we have 3 different forms of n. n may be 3q और n may be 3q plus 1 और n may be 3q plus 2। अब इन तीनों कंडीशन में आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए, केस फर्स्ट, what that if n equals to, what is, देखिए फर्स्ट क्या है, n equals to 3q, है ना? हमें 3 कंडीशंस देखने हैं। एक तो n देखिए, वो मिल गया हमारे पास। अब सेकंड क्या फॉर्मेट बनाना है, n प्लस 1, n प्लस 1 equals to 3q, sorry, we will have to find n plus 1 na, n plus 1 equals to 3q, the value of n is 3q, here it is taken n plus 1, it means 3q plus 1, and the third format is n plus 2, n plus 2। अब देखिए n क्या है, 3q, n 3q n plus 2, it means 3 फॉर्म आया। अब देखिए ये जो 3q है, 3q है, 3 के टर्म में एक्सप्रेस है, इट मींस ये 3 से डिविजिबल होगा। अब यहां देखिए ये 3q है, ये तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये जो 1 है ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। एंड इन दैट केस दिस कंप्लीट नंबर 3q plus 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना, इनडिविजिबल बाय 3। अच्छा, यहां देखिए द नंबर इज 3q plus 2। अब देखिए 3q तो ये वाला टर्म 3 से डिविजिबल है, बट ये जो 2 आया वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इट मींस ये जो नंबर है 3q plus 2, इस नंबर में, इस कंप्लीट नंबर में 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है ना ये नंबर। इट मींस इनडिविजिबल बाय 3, इनडिविजिबल बाय
है ना। इसका मतलब देखिए इफ n इक्वल्स टू 3q हमने लिया तो ये n प्लस 1 और n प्लस 2 इन तीनों में से देखिए सिर्फ एक ही डिविजिबल है ना 3 से, और वो नंबर कौन है 3। ये वाला भी देखिए इनडिविजिबल है n प्लस 1 और यहां देखिए n प्लस 2 भी इनडिविजिबल है। इट मींस इस तीन में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल है। क्लियर। अब आइए हम सेकंड केस देखते हैं। देखिए if n equals to, देखिए we have 3 different forms of n. The first one is 3q which is already discussed and the second one is 3q plus 1, है ना। आइए n equals to 3q plus 1। अब देखिए we have to find 3 different forms n plus 1 and n plus 2। देखिए n यहां से आ गया, then n plus 1 it means what is the value of n here, the n is 3q plus 1, n plus 1 है ना, तो इस plus 1 ऐड कीजिए, बताइए क्या हो गया। we have 3q plus 2, है ना। अच्छा, and then we have to find n plus 2 also, and this n plus 2 it means the value of n is 3q plus 1 and n plus 2 it means 3q plus 3। अब देखिएगा इसको, ये देखिए 3q, ये नंबर डिविजिबल है 3 से क्योंकि ये 3 के टर्म में है, लेकिन ये 1 जो है ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ना। इट मींस ये जो पूरा ये जो कंप्लीट नंबर है 3q plus 1 वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल बाय 3। अब यहां देखिए n plus 1 3q 3 के टर्म में है तो ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, बट ये 2 जो है दिस 2 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। इट मींस ये जो कंप्लीट नंबर बना 3q plus 2 वो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3q तो है लेकिन 2 तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर कंप्लीट नंबर जो है वो 3 से इनडिविजिबल है। अब यहां देखिए 3q plus 3 है ना, ये देखिए जो 3q है क्योंकि 3 के टर्म में है तो ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और इसके बाद ये जो नंबर है 3 ये भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और ये भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मींस ये पूरा जो कंप्लीट नंबर है 3q plus 3 ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है ना। अब एक बार फिर से यहां ऑब्जर्व कीजिए, देखिए सेकंड केस में n इक्वल्स टू 3q plus 1, फिर भी देखिए हमने तीनों कंडीशन फाइंड किया ना, n plus 1 और n plus 2। अब देखिए इसमें यहां n जो है वो इंडिविजिबल है, n plus 1 भी इंडिविजिबल है, बट n plus 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। Then what do we see here? What do we observe here? इस तीन में से सिर्फ एक है
से डिविजिबल है। इट मीन्स 1 and only 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3. Okay? अब देखिए एक थर्ड फॉर्म हम लेते हैं। We have taken n equals to 3. We have also taken n equals to 3q plus 1. Now the last option is left, that is n equals to 3q plus 2. If n equals to 3q plus 2, अब देखिए, therefore n plus 1 क्या होगा बताइए? The value of n is 3q plus 2. The value of n is 3q plus 2 and n इसमें 1 ऐड करना है, then it will become 3q plus 3. Okay? And now the last is n plus 2, isn't it? 3q, the value of n is 3q plus 2 and n इसमें 2 ऐड करना है ना, it means 3q plus 4. अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये 3q है, डिविजिबल है 3 से, 2 है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इनडिविजिबल बाय 3। अब यहां देखिए, the number is 3q plus 3. 3q is divisible by 3 and 3 is also divisible by 3. It means this number 3q plus 3 is, this complete number is exactly divisible by 3, क्योंकि ये वाला टर्म भी डिविजिबल है, ये वाला टर्म भी डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। अब यहां देखिए 3q plus 4 है ना, 3q जो है वो 3 से डिविजिबल है और 4 जो है वो तो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंप्लीट नंबर बना 3q plus 4 वो भी इनडिविजिबल है 3 से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि फिर देखिए, अगर हमने n equals to 3q plus 2 लिया है तो देखिए then n is indivisible by 3, n plus 1 it is divisible by 3 and n plus 2 again it is indivisible by 3. It means इस तीन में से n plus 1 या n plus 2, इन तीनों में से देखिए सिर्फ एक ही डिविजिबल है ना, तो यहां पे देखिए इन तीनों में सिर्फ एक डिविजिबल है। कौन? ओनली कौन डिविजिबल है बताइए? n इज डिविजिबल। इस तीनों में बताइए सिर्फ एक ही डिविजिबल है ना, एंड दैट इज n plus 2। divisible by 3 और यहां देखिए ये जो 3 है, इस 3 में भी सिर्फ एक ही डिविजिबल है ना, ओनली, एंड द नंबर इज व्हाट इज दिस इज n plus 1, only n plus 1 is
divisible by 3. It means n चाहे 3q हो या फिर 3q plus 1 हो या फिर 3q plus 2 हो, n कुछ भी हो, n plus 1 and n plus 2 इन तीनों में से सिर्फ एक ही डिविजिबल होगा 3 से, यही प्रूफ करना था। Therefore 1 and only 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने यहां स्टैब्लिश कर लिया। आप इसको आराम से समझिए और नोट कर लीजिए। चलिए, एकदम एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होगा, ये जो मैं बता रहा हूं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप से ट्राई कीजिएगा, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। शो दैट 1 and only 1 out of n comma n plus 2 or n plus 4 is exactly, or you can simply write divisible by 3। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप से बनाइएगा। चलिए, ठीक है, इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप ट्राई कीजिए। आइए, अब मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 बातों का स्टडी करना है। The first one, which is already discussed, is Euclid's division lemma, and the second thing which we are going to discuss now is the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. एकदम आराम से समझना है। Fundamental theorem of arithmetic. Today we will introduce this theorem, this fundamental theorem of arithmetic, as it is clear from its title that fundamental theorem of arithmetic. It means it is one of the basic theorem, one of the basic facts of arithmetic. अब ये भी बहुत सिंपल है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो भी बहुत सिंपल है। देखिए,
मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं आपको समझाना। देयर इज अ नंबर से 12, and if we factorize this given number 12, this can be done like that. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना? It means this 12 can be written as 2 into 2. It means 2 to the power 2 into 3. अब क्वेश्चन ये है कि ये तो 12 को हमने एक तरीके से लिखा है, क्या आप 12 को किसी डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सपोज कीजिए a student say A, he argues that he can express this number 12 in a different way, like he argues that 12 can be written as 6 into 2. अब बताइए 2 तो ठीक है, but 6 is it a simple number? ना, 2 को हम 6 को हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 6 can be written as 3 into 2. तो फिर हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया? देखिए 3 2 और 2, देखिए ये 3 है ना, इनटू ये 1 और ये 2, इट मींस 2 स्क्वायर। फिर देखिए यही नंबर आ गया ना इसी फॉर्म में। Suppose that another student B argues that he or she can explain or can express 12 in a different way, and when he is said, he is asked, he explains 4 into 3, और 4 into 3 4 सिंपल है नहीं ना? देखिए 4 can be written as 2 into 2 and this 3, okay? तो फिर ये क्या बनेगा बताइए आप? 2 1 and 2, it means 2 to the power 2 into 3, and देखिए the result is same. चलिए वन मोर एग्जाम्पल, आराम से समझिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। सपोज कीजिए कोई लार्ज नंबर, सपोज 1500, देखिएगा 2 and it comes 750, again 2, it comes 375, and 125, and 525, and this 5. It means 1500 can be factorized in the form of, look, 2 and 2, 2 times 2, it means 2 to the power 2 into 1 time 3 into 1 2 and 3, 3 times 5. अब
express this number 1500 in a different way? He does like that. 1500, he argues that he can write 1500 as 500 into 3. अब फिर देखिए क्वेश्चन यही है कि 500 क्या सिंपल टर्म में है क्या? The answer is no, because this 500 can be written as 100 into 5. अच्छा, is the 100 is in simplest term? Now, this 100 can be expressed as 25 into 4. And further, the number 25 can be expressed as 5 into 5, and this number 4 can be expressed as 2 into 2. अब देखिए, यहां जो दोनों टर्म है सिंपल है, यहां जो दोनों नंबर है सिंपल है, यहां जो नंबर है सिंपल है, और यहां भी नंबर सिंपल है. इट मींस इसको अगर हम फिर से एक्सप्रेस करें, ऑर्डरली अरेंज करें, देन देखिए 1 and 2, 2 times 2, 1, 2, या पहले सिंगल वाला लिखिए, 2 के बाद 3 देखिए, 1 times 3 into 1, 2 and 3, 3 times 5. And देखिए the number comes same. इसी तरह से आप इसको और भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं. आप 1500 इस नंबर को चाहे जैसे भी लिखें, जैसे भी एक्सप्रेस करें, ये ओवरऑल फिर घूम के यही आ जाएगा, that 2 to the power 2 into 3 into 5 to the power 3. इसको और किसी डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते हैं, है ना? अब आप अगर लिखे नहीं 5 to the power 3 into 3 into 2 to the power 2, तो ये टर्म तो यही रहा ना. हमने बस इसको आगे पीछे कर दिया, जो पहले था उसको बाद में कर दिया, जो बाद में था उसको पहले कर दिया. ऑर्डर चेंज होने से आप जानते हैं कि इफ नंबर्स आर कनेक्टेड विद प्लस और मल्टीप्लाइड, द नंबर रिमेन्स सेम if we reverse or change the order of them. है ना? अगर ढेर सारे नंबर प्लस में या मल्टीप्लाई में कनेक्टेड हो, तो हम नंबर का ऑर्डर चाहे चेंज भी कर दें, बट नंबर हमेशा सेम रहता है. तो however we discussed only these two examples, लेकिन यहां से कॉमन फैक्ट एक्सट्रैक्ट होता है जो सारे नंबर के लिए करेक्ट है, एप्लीकेबल है. एंड व्हाट इज दैट फैक्ट? देखिए, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, हियर द टर्म्स कम कॉम्पोजिट, एंड व्हाट डज द टर्म कॉम्पोजिट रेफर? इसको समझना पड़ेगा ना. तो इसको आप देखिए, इसको हम समझ सकते हैं कि नंबर्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 वेज में. या एक मिनट, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी ये डिस्कशन लेंदी चला जाएगा. अभी सिर्फ हम यहां ये देख रहे हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जिस नंबर के 3 फैक्टर हो. एक मिनट रुकिए, क्या हुआ? चलो आगे चलते हैं. चलो सॉरी, यस. तो कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर मीन्स numbers which have at least 3 factors, having at least 3 factors. Numbers having at least 3 factors. एक तो 1 होगा,
सेकंड वो नंबर अपने आप होगा सेल्फ एंड एटलीस्ट वन मोर वैसे नंबर जिसको कम से कम 3 फैक्टर हो। 2 फैक्टर वाला नंबर, 1 एंड सेल्फ वाला, you know numbers are called prime numbers like 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. These numbers have only 2 factors. Like 11, there are 2 factors, 1 and the second is 11 itself. तो जिस नंबर के कम से कम 3 फैक्टर हो, एक तो 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है और दूसरा सेल्फ एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और इन दो के अलावा कम से कम एक फैक्टर और हो तो उनको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं सबको हम इस तरह से प्राइम फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है, दिस फैक्टराइजेशन ऑलवेज रिमेन्स यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन ऑलवेज रिमेन्स यूनिक। हाँ, फिर हम इसमें ये कंसीडर नहीं करते कि ऑर्डर इसका क्या है, कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि मल्टीप्लाई के टर्म में अगर नंबर्स कनेक्टेड हो तो उनका ऑर्डर जो है वो मीनिंगलेस है। ऑर्डर आप पहले रखिए बाद में रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So, a fact which is very clear from these 2 examples is that every composite numbers can be expressed as the product of primes. Primes means prime numbers. The product of primes and this factorization remains unique without taking the order in which they exist. Every composite number can be expressed, every composite number every composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization remains unique without taking the order in which they exist. ये जो simple सा fact है ना, this simple fact is known as the fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic. This simple fact is known as the fundamental theorem of arithmetic. अब देखिए ये भी जो है वो 1 मार्क के लिए सेक्शन ए में इंपॉर्टेंट है। इसके तो 2 मार्क्स तो सेक्शन 2 पे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक अगर 1 मार्क्स पे पूछेगा तो simply it can be asked as, and what will be the question? The question may be like this: state the fundamental theorem of arithmetic. State the fundamental theorem of arithmetic, and the answer will, as aforesaid, है ना,
answer will, the fundamental theorem of arithmetic runs as follows. Every composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization remains unique without taking the order in which they exist. ये जो सिंपल सा फैक्ट है जिसको हमने यहां एक्सप्लेन किया है, it can be written in word as this, like this, and this is called fundamental theorem of arithmetic. आप इसको याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में we will discuss the application of this fundamental theorem of arithmetic, and it has wider application than Euclid's division lemma. So in next class we will discuss the application of fundamental theorem of arithmetic. आज के लिए इतना ही.